القاعدہ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، مشقت آسانی پیدا کرتی ہے۔ مشقت آسانی کو کھینچ کے لے کے آتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ تو مشقت کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے۔ کسی شرعی عمل کے انجام دہی میں پریشانی ہو، ناقابل برداشت پریشانی ہو، اس کی وجہ سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ فجر کے اٹھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے فجر کی نماز معاف ہو جائے۔ ہاں، دن میں ہو جائے، نہیں نہیں، وہ قابل برداشت، وہ کیا ہے؟ برداشت ہے۔ ناقابل برداشت پریشانی ہو، اس کی وجہ سے آسانی دی جاتی ہے۔ اصل اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، دشواری نہیں چاہتے۔ عام طور پہ احکام کے بیان کرنے کے بعد اس طرح کی آیت لائی گئی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کے ذریعے آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، دشواری میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ دین یسر ہے، بہت آسان دین، اس میں کسی طرح کی تنگی اور پریشانی نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ دین سیدھا اور آسان دین ہے۔ سیدھا اور آسان دین، تو دین اسلام کیا ہے؟ دین حنیف ہے۔ کیا ہے؟ دین حنیف، نہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ سیدھا راستہ، ایک شاہراہ ہے، یہ کوئی پگڈنڈی نہیں ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ دین سیدھا اور آسان دین ہے۔ علماء نے کہا ہے اسی قاعدے سے شریعت کی تمام رخصتیں اور تخفیفات ثابت ہوتی ہیں یا ان کی تخریج کی جاتی۔ تو شریعت کی جو رخصتیں ہیں اور تخفیفات ہیں، سب اسی سے ہیں، المشقہ تجلب التیسیر، مشقت کی وجہ سے آسانی پیدا ہو جاتی۔ اور اس ضابطے کا جو ماخذ ہے، جو مصدر ہے یا دلیل ہے، اس کو ذکر کر دیا گیا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةٌ، جان لو کہ تخفیف کے اسباب عبادات اور غیر عبادات میں 7 ہیں۔ تخفیف کے اسباب کیا ہیں؟ 7 ہیں۔ 7 وجہوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے کی وجہ سے احکام میں آسانی ہوتی ہے۔ الاول السفر، تو پہلا سبب تخفیف ہے سفر۔ سفر کی 2 قسمیں ہیں، منہما یختص بالطویل، بعض احکام وہ ہیں جو سفر طویل کے ساتھ خاص ہیں۔ کس کے ساتھ؟ یعنی جسے سفر شرعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سفر شرعی کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے؟ ہاں، 77 کلومیٹر کا۔ ہاں، کتنے کا ہوتا ہے؟ یعنی یہ اس وقت ہوگا جبکہ آپ 45 میل کو مانے۔ کتنے کو مانے؟ 45 میل کو۔ 45 میل کو مانے تو کتنا بن جائے گا؟ 77، اور وہ بھی 45 میل انگریزی۔ کیا مانے؟ 45 میل انگریزی۔ اور اگر 45 میل شرعی مانتے ہیں تو وہ تقریباً ہو جائے گا 82۔ ہاں، اور اگر 48 مانتے ہیں تو وہ ہو جائے گا 87۔ کیا ہو جائے گا؟ 87، اور ایک قول کے مطابق تقریباً 89۔ کتنا ہے؟ 89 کلومیٹر۔ ہاں، وَهُوَ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وہ 3 دن اور رات ہے۔ حنفیہ کے اصل یہی ہے، 3 دن اور 3 رات کی مسافت۔
तो इसकी वजह से जो आसानी हासिल होती है वो क्या है? नंबर एक, कसर। 4 रकत वाली नमाजें 2 रकत पढ़ेंगे। रोजा न रखने की इजाजत। नंबर तीन, एक दिन और एक रात से ज्यादा मसा की गुंजाइश। यानी मोजा पहने हुए हैं, तब आप 3 दिन और 3 रात तक उस पर मसा कीजिए। मुकीम है तो एक दिन, मुसाफिर है तो 3 दिन। कौन मुसाफिर? वही जो सफर शराई पे है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वाला मुसाफिर नहीं। और उजहिया का साबित हो जाना, जैसे कि गायतुल मराम गायतुल बयान में है। क्या है? गायतुल बयान में है। यानी इस मसले में इख्तलाफ है। हाशिया नंबर 4 में देखिए, बाज हमारे असहाब कहते हैं कि उजहिया साबित हो जाती है महज सफर से। किससे? महज सफर से, यानी सफर शरई पे होना कोई जरूरी नहीं है। सफर की दूसरी किस्म वो है जो सफर शरई के साथ या तवील के साथ खास नहीं है, और मुराद उससे शहर से मुतलकन निकल जाना है। अल खुरूज अनिल मिस्र। तो आप यहाँ से नदवा सरा जाएं, घोसी जाएं, इसी काम की वजह से, तो जुमे की फर्जियत आप पे बाकी नहीं है अब। यानी किसी काम में मशरूफ हैं आप, लोगों से मिलना है, जुलना है, ये काम करना है, वो काम करना है, बैंक में जाके लाइन लगाना है। सबसे बड़ा मसला किसका होता है? बैंक का। अब तो खैर कुछ आसानी हो गई है, लेकिन अब भी बैंक में जाइए, अंदर कोई काम हो तो लाइन लगाना ही पड़ता है। लाइन में लगे हुए हैं, जुमे की अजान हो रही है, अब आपके जिम्मे से जुमा साबित हो चुका है। तो मुतलक सफर की वजह से जुमे की फर्जियत साबित हो जाती है। आप जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं। वह हुआ तर्कुल जुमा वल ईदैन वल जमा। और वो है जुमा, ईदैन और जमाअत को छोड़ देना। क्या कर देना? नफल अल दाब्बा, सवारी पे नफल पढ़ना। क्या पढ़ना? सवारी पे नफल पढ़ना। और नफल की जो वो सुन्नतों की जो ताकीद है, वो ताकीद भी खत्म हो जाती है। जो सुन्नत मुअक्कदा हैं सफर में, क्या बन जाती हैं? सुन्नत गैर मुअक्कदा। तो चाहे सफर शरई हो, चाहे सफर गैर शरई। सफर गैर शरई पर भी आप निकल गए हैं तो सुन्नत मुअक्कदा की ताकीद खत्म हो गई। समझ रहे हैं? आसानी है ना? 4 रकत पढ़ के भाग जाइए आप, वो ताकीद आपकी क्या हो गई? खत्म हो गई। आदमी अपनी जरूरत के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? बहुत से काम होते हैं, बसा औकात अगर आप पढ़ने लगे तो उस काम में नुकसान हो जाएगा। इसलिए शरीयत ने क्या की है? ये रुख्सतें दी है कि भाई अब सुन्नत मुअक्कदा की ताकीद आपसे खत्म हो गई। इसी तरह से ये भी है कि अगर कोई इसी सफर पे जाता है, यानी मुतलक सफर पे जाता है, और वहां उसका पैसा खत्म हो जाए, तो उसके लिए जक़ात की रकम से लेना जायज है। समझ रहे हो अब्दुल राज़िक साहब? हाँ, वो ले सकता है भाई कि मेरा पैसा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब घर वालों से किसी से बुला करके मंगाओ, वो आए और वो तो मुझे पैसा दें तो मैं खर्च करूं। इसके बजाय आप जक़ात की रकम किसी से लेना चाहें तो ले सकते हैं। यानी जो कुरान ने बतलाया है वह इब्न सबील। क्या क्या है? हाँ, 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 वो इब्न सबील। हाँ जी, अच्छा है, मंगा लीजिए। लेकिन शरीयत ने आपको इजाजत दी, आप मुस्तहिक हो गए। आप मुस्तहिक हो गए। आतिफ के लिए आसानी। क्या है आतिफ? हाँ, हाँ, फोन पे चलाता है। अच्छा। वह जवाज तयम्मुम, तयम्मुम का जवाज, ये उन लोगों के कौल के मुताबिक है जो तयम्मुम के जवाज के लिए सफर को शर्त करार देते हैं। तयम्मुम कब जायज है? सिर्फ मुसाफिर के लिए। हालांकि तयम्मुम जायज है मुकीम के लिए। हाँ, पढ़ चुके हैं आप लोग या लिख चुके हैं फतवा? तो तयम्मुम जायज है मुकीम के लिए भी, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी उन लोगों के मुताबिक जो मुकीम के लिए भी तयम्मुम के जवाज के कायल है। फतवा भी इसी पर है।
व इस्तेहबाबुल क़ुरअ बैन निसाइही, और औरतों के दरमियान क़ुरा अंदाजी का मुस्तहब होना। तो घर पे हैं तब तो बारी मुकर्रर करना होता है, एक रात एक बीवी के पास रहे, दूसरी रात दूसरी बीवी के पास। लेकिन सफर पे जा रहे हो तो नहीं, एक मर्तबा इसको ले गए तो दोबारा उसको ले जाएं, सेवारा उसको ले जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अलबत्ता ततीब कल्ब के लिए, लड़ाई ना हो, कहें कि हर मर्तबा उसी को ले जाते हैं, हमको पूछते ही नहीं है। ततीब कल्ब के लिए कुरान अंदाजी कर लेना मुस्तहब है। अल्लाह के रसूल ऐसा करते थे। क्या करते थे? कुरान अंदाजी कर लेते थे, जिसका नाम निकलता था उसको अपने साथ लेके जाते थे। ये कुरान अंदाजी मुतलक सफर के लिए भी है। इसके लिए है, यानी सफर शरई पे जाएं, कश्मीर घूमने जाएं, या यहीं नदवा सराय घोसी टहलने के लिए जाएं, तब भी क्या है, पीछे जो है किस बीवी को बैठा के लेके जाना है, आप कुरान अंदाजी कर दीजिए। आज ये जाएगी, कौन जाएगी, उसको ले लीजिए। और औरतों के दरमियान कुरान अंदाजी का मुस्तहब होना, बात खत्म हो गई। ये सफर की क्या है, दो किस्में हैं। बाज़ अहकाम सफर शरई से मुताल्लिक हैं, और बाज़ अहकाम मुतलक सफर से मुताल्लिक है। वल कसर लिल मुसाफिर इंदना रुख्सा इस्कात, मुसाफिर के लिए कसर हमारे नजदीक रुख्सत इस्कात है। रुख्सत इस्कात है यानी ये अजीमत है। रुख्सत इस्कात का मतलब क्या है, यानी ये अजीमत है। यही मुकम्मल नमाज है। यही क्या है, मुकम्मल नमाज है। हदीस पढ़ चुके होंगे आप, हजरत आयशा की रिवायत है। वो कहते हैं नमाज पहले दो दो, हर नमाज दो ही रकत थी, हजर में इजाफा कर दिया गया, सफर में असल पर बाकी रखा गया। तो ये असल नमाज है। ये दो रकत क्या है, असल नमाज है। इसलिए अगर कोई चार रकत पढ़ दे कायदा ऊला के बगैर तो उसकी नमाज नहीं होगी। वही क्या है उसके लिए, कायदा अखीरा है। कायदा ऊला करके चार पढ़ ले तो सजदा सहव करने से नमाज हो जाएगी। कसर मुसाफिर के लिए हमारे नजदीक रुखसत इस्कात है, यानी अजीमत के माना में है। इस माना कर कि इत्माम ये मशरू बाकी नहीं रहा, अब मुकम्मल पढ़ना जायज नहीं है। हत्ता अतिमा बिही, यहाँ तक कि मुकम्मल पढ़ने की वजह से गुनहगार होगा। वह फसदत, और नमाज फासिद हो जाएगी। अगर चार रकत पढ़े और दो रकातों पर न बैठे और इकामत की नीयत न करे तीसरे के सजदे से पहले, तीसरे के सजदे से पहले इकामत की नीयत कर ले, अब क्या बन जाएगा वो, मुकीम हो जाएगा। अब वो चार रकत पढ़ सकता है। तो तखफीफ के असबाब में से एक सबब क्या है, सफर है। सफर की वजह से ये रुखसतें आपको हासिल हो जाती हैं, और बहुत सी रुखसतें हैं। हाँ हाँ, इमाम के पीछे पढ़ेगा तो चार कोई। दूसरा मर्ज है, क्या है, बीमारी की वजह से भी क्या है, रुखसतें हासिल होती हैं। कुरान ने आमतौर पे क्या किया है, मर्ज और सफर को एक साथ बयान किया है। हाँ, क्या किया है, फमन कान मिनकुम मरीदना वाला सफर। उसके बाद क्या है सूरह मुज़म्मिल या मुद्दस्सिर में, फमन कान मिन नहीं, अलिम अल्लाह व अन्नकुम तख्तानून, कहाँ गया वो, हाँ, ये तो रोजे में, तो तहज्जुद वाले में, आखरून, हाँ हाँ हाँ, अलिम अन सयकुन मिनकुम मरज़ा व आखरून यज़रिबून फिल अर्ज़। तो दोनों को क्या बताया आमतौर पर कुरान ने, एक साथ शुमार किया है, सफर और मर्ज को। तो दूसरा सबब क्या है, मर्ज। उसकी रुखसतें बहुत ज्यादा हैं, मर्ज की वजह से अल्लाह ताला बहुत ज्यादा छूट देते हैं। चुनांचे तयम्मुम इंदल खौफ अला नफ्सिही, तयम्मुम की इजाजत है, जान का खौफ हो
या जिस्म के किसी हिस्से पर खौफ हो, यानी उसके तलफ होने का, जाय हो जाने का। ठंडक इतनी ज्यादा है कि वजू करेंगे तो हाथ के शल हो जाने का खतरा। क्या है? शल हो जाना, यानी क्या हो जाएगा? नसें जाम हो जाएंगी, इतना ज्यादा बर्फ है, बिल्कुल पानी बर्फ की तरह से। तो खौफ हो जान का, या जिस्म के किसी हिस्से पर, या मर्ज की ज्यादती या देर से अच्छा होने का अंदेशा हो। क्या हो? मर्ज क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। अभी तो आप सिर्फ बुखार में मुब्तला है, नहा लेंगे तो नमूनिया में मुब्तला हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? नमूनिया हो जाएगा। या ये कि जख्मी है, लफ पर पानी पड़ जाएगा तो वो देर में अच्छा होगा। तो ये क्या है? तयम्मुम करना। इन सब की वजह से किसकी गुंजाइश है? तयम्मुम की गुंजाइश है। वल क़ऊद फी सलातिल फर्ज, फर्ज नमाज में बैठने, बल्कि इशारा लेटने और इशारा करने की। हाँ, खड़े होके ताकत नहीं है तो बैठ जाइए, बैठ के ताकत नहीं है तो सो के पढ़िए, सो करके भी ताकत नहीं है तो इशारा कर लीजिए सर से। क्या कर लीजिए? सर से इशारा कर लीजिए। बस लेटे लेटे क्या कीजिए, लेट के या बैठ के जैसे भी सर से इशारा कर सकते हो कर लीजिए। उसके बाद खत्म। उसके बाद क्या है? खत्म। कुछ लोग नहीं कहते नहीं, आंख से इशारा करे, कुछ लोग कहते हैं दिल से इशारा करे। हाँ, तो रह ही जाएगा किस हाल में कि इशारा कर सकता है। चलिए, फर्ज नमाज में बैठना, लेटना और इशारा करना, ये सब किसकी वजह से है? मर्ज की वजह से। जमात से पीछे रह जाना फजीलत के हुसूल के साथ। बीमार है इसलिए जमात से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वरना आम हालात में जमात से आप नमाज पढ़ते थे। पहले ही से नहीं पढ़ रहे हैं तब क्या मिलेगा? हाँ, नहीं, जमात की आप पाबंदी करते थे, अलबत्ता बीमारी की वजह से पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा सवाब मिलेगा, जमात का सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर फरमाया कि तुम लोग जो ये वादी तय करते हो, चढ़ते हो, उतरते हो, इतनी दूरी का सफर तय कर रहे हो, तो जो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हारा सवाब कुछ लोगों को मदीने में बैठे बैठे मिल रहा है। ये सब सवाब क्या है? उनको बैठे बैठे मिल रहा है। हबसहुम अल उज्र, उन्हें उज्र ने रोके रखा है। अगर वो बीमार ना होते, मासूर ना होते, तो हमारे साथ इस सफर में शरीक होते। उनका इरादा था, लेकिन उज्र की वजह से वो नहीं आ सके। इस जिहाद उनको मिल रहा है। ये भी अल्लाह का करम है। नहीं, वह तखल्लुफ अनिल जमा, जमात से पीछे रह जाना फजीलत के हासिल होने के साथ, यानी जमात की फजीलत आपको मिलती रहेगी। रमजान में रोजा न रखने की इजाजत शेख फानी के लिए। रोजा नहीं रख सकता है वो, बूढ़ा हो गया बिल्कुल जुलजुल, फिदिया के वजूब के साथ, माँ वजूब फिदिया अलग, फिदिया दे दे। रोजा न रख के उसके बदले में क्या दे दे? फिदिया दे दे। वो जो कुरान की आयत है, वल्लज़ीना युतीकूनहु फिदियतुन ताअमु मिस्कीन, इताकत, यानी अदम ताकत, कल्ब माखस के लिए, फाल किसके लिए? यानी वो लोग जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखते हैं बुढ़ापे की वजह से, तो उनके लिए है फिदिया देना। वल इंतकाल मिन अस्सौम इलल इताम फी कफारत ज़िहार, और मुंतकिल हो जाना रोजे से खिलाने की तरफ कफारे ज़िहार में। वल फित्र फी रमजान, और रमजान का रोजा तोड़ देने की वजह से। तो ज़िहार का कफारा है, उसमें रोजा रखना है मुसलसल 2 महीने का। लेकिन बीमार पड़ गए आप और रोजा नहीं रख सकते हैं, तो क्या कर दीजिए? खाना खिला दीजिए।
ऐसे ही रोजा आपने जानबूझ के तोड़ दिया है। क्या किया आपने? जानबूझ करके रोजा रख करके रमजान के दिन में उसे आपने तोड़ दिया है, तो कफ्फारा देना होता है। क्या देना होता है? वो भी 60 रोजा है। लेकिन 60 रोजा नहीं रख सकते हैं आप, बीमारी की वजह से। यहाँ बीमारी को फर्ज किया गया है। बीमारी और तो वजूहात हो सकती हैं। तो वो जो एक आराबी आए थे, क्या आए थे? आराबी आए थे और कहा था, वाक़ा तो अली फी नहारे रमजान। अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई वो गुलाम आजाद करो। कहा बस ये गर्दन है मेरे पास, आतिक रकबा का यही है मेरे पास एक गर्दन। कहा 60 रोजा रखो। कहा 30 रोजा तो रख नहीं पाए, कहा से 60 रोजा रखूंगा। हैं? बड़ा दिलचस्प आदमी थे, हाँ। उर्मिज़ा शख्स। कहा 30 रोजा तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, बीवी से क्या कर लिया? जमा कर लिया। कहा 60 रोजा रखूंगा। कहा कि तब जो है वो 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। कहने लगे मुझसे बड़ा मिस्किन कौन होगा मदीने में। हाँ, हाँ, वो खजूर जो अल्लाह के रसूल के पास आया था, आपने कहा लो सदका कर दो। तो कहा मैं ही सबसे ज्यादा फकीर हूँ, मैं ही खा जाऊंगा ले जाकर। वल इंतकाल मिन अस्सौम इलल इत्आम, और रोजे से खाना खिलाने की तरफ मुंतकिल होना कफ्फारे ज़िहार में और कफ्फारे फित्र फी रमजान में। वल खुरूज मिनल मुअतकफ, एतिकाफ की जगह से बाहर निकल जाना। ऐसा नहीं कि अब चाहे मरे चाहे जिए उसी एतिकाफ में है तो वहीं बैठे रहें। नहीं, बीमारी हो गई है तो एतिकाफ तोड़ दीजिए, बाद में कज़ा कर लीजिए एतिकाफ के। वल इस्तिनाबा फिल हज, हज में नायब बनाना। हाँ, हज बदल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हज बदल। तो बीमार है, यानी ऐसी बीमारी है जिससे अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, बिस्तर पे पड़े हो गए हैं, नहीं चल फिर सकते, आइंदा भी नहीं चल फिर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना नायब बना के किसी को भेज सकते हैं, मेरे बदले तुम हज कराओ। इसे क्या कहते हैं? हज बदल। और नायब बनाना रमिये जेमार में, इसमें यहाँ भी ये उज्र है, बीमारी है, आप खुद से जाकर के रमिये जेमार नहीं कर सकते हैं। किसी को अपना नायब बना दीजिए, यानी जो हज करने के लिए आया है। ऐसा नहीं किसी को पकड़ करके, हज करने के लिए कोई आया हुआ है, वो भी हालत एहराम में है, तो अपने साथ साथ आपका भी वो रमी कर लेगा, पहले अपना कर लेगा उसके बाद आपका कर लेगा। व इबाहत महजूरातिल एहराम माल फिदिया, और एहराम के महजूरात का जायज होना फिदिया के साथ। क्या है? हाँ, इमाम के जो महजूरात हैं, आप बीमार हो गए हैं तो उन महजूरात का इर्तिकाब कर सकते हैं। अलबत्ता फिदिया देना होगा। क्या देना होगा? फिदिया देना। क्या है? मरीजन होगा, क्या है? अजन ना जी, कुल खालिया हुआ सफर। हाँ, हाँ, ये फमन कान मिनको मरीजन औ बिही अदन मिन रासे ही, मरीज हो या उसके सर में क्या हो, जुआ वुआ पड़ गए हो, तब वहां क्या है? फिदिया है। वह तदावी भी नजासा जी। हाँ, हाँ, हाँ। ना, 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 ये नहीं होगा, 2 in 1 नहीं होगा यहाँ पे। वह तदावी बिन नजासात, नजिस चीजों से इलाज करना। इससे और खमर से भी इलाज करना, दो कौलों में से एक के मुताबिक। फिक़ह हनफी में क्या है? दो कौल है। यानी अगर कोई दूसरी मुतबादिल दवा मौजूद ना हो तो आप कमर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन काजी खान ने अदम जवाज को पसंद किया है, यानी बीमारी की हालत में भी कमर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो हदीस है इनके पेश नजर कि अल्लाह के रसूल से कहा नहीं भाई, क्या है? दवा है, तो आपने फरमाया दवा नहीं है, क्या है? मर्ज है। और लुकमे को निगल लेना, जब लुकमा अटक जाए इत्तेफाकन। क्या हो जाए? खाना अटक जाए, सांस लग जाए, पानी मौके पे मौजूद नहीं है, ढूंढने जाएंगे तो मरने का अंदेशा है,
موقع पे क्या है, शराब मौजूद है, पी लीजिए एक घोट, गटगटा के पूरा बाटल मत उलट लीजिए, क्या कीजिए, एक घोट पी लीजिए। वह इबाहतु नजर लित्तबीब, और तबीब के लिए नजर का जायज, देखने का जवाज, यहाँ तक कि शर्मगाह और आगे और पीछे की शर्मगाह, तल औरा व सवतन, यहाँ तक कि सतर का हिस्सा, औरा सतर तर्जमा कर दीजिए, सतर का हिस्सा और आगे और पीछे की शर्मगाह। इस वक्त तो बहुत आम हो गया है, तमाम इलाज भी इसी तरह से होते हैं। आदमी बिल्कुल क्या हो जाता है, नंगा हो जाता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सब बिल्कुल क्या होते हैं, नंगे हो जाते हैं। इसी मौके पर कहा जाता है, इसी की औरतें वहां हो तो ज्यादा बेहतर है, औरत डॉक्टर हो तो क्या हो, औरतों के इलाज के लिए ज्यादा बेहतर है। वसालिस अल इकरा, तो तखफीफ का तीसरा सबब है इकरा। इकरा की हालत में भी बाज अहकाम साकित हो जाते हैं, यहाँ तक कि कलमा कुफ्र कहने की इजाजत होती है। नहीं, इकरा की हालत में कलमा कुफ्र कहने की इजाजत होती है। इसी तरह से इकरा की वजह से हराम खाने की इजाजत होती है। कोई कहे शराब पियो, मुर्दार खाओ, खिंजीर का गोश्त खाओ, वरना उड़ा दूंगा। हाँ, ठीक। हाँ 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 हाँ। तो इकराह की वजह से ये चीजें क्या हो जाती हैं, हलाल हो जाती हैं। इकराह की दो किस्में होती हैं, एक इकराह है ताम और इकराह है नाकिस। या कहा जाता है इकराह है मुलजी और इकराह है गैर मुलजी। इकराह ताम क्या है, यानी आपको जान से मारने की धमकी दी जाए, आपके जिस्म के किसी हिस्से को काटने की धमकी दी जाए, ये क्या है, इकराह ताम। आपको, आपके बच्चे को, किसी को भी जिससे आपका करीबी रिश्ता है, उसको कत्ल करने की या जिस्म के किसी हिस्से को काटने की धमकी दी जाए तो ये इकराह ताम है। डंडे से पीटने की धमकी दी जाए, जेल में डालने की धमकी दी जाए, ये सब क्या इकराह है, नाफिस है। तो दोनों से कुछ ना कुछ अहकाम मुताल्लिक होते हैं। असालिस अल इकरा, तखफीफ का दूसरा सबब है इकरा। वर्राबे निस्यान, तखफीफ का चौथा सबब है निस्यान। तो निस्यान भी क्या है, माफ है। भूलना भी क्या है, माफ है। क्या है, रुफियल कलम अनिस सलाह, क्या क्या है उसमें, मजनून। अच्छा, वहां निस्यान नहीं है, वहां निस्यान नहीं है, नाइम है, मजनून है और नाबालिग है। नहीं, एक दूसरी जगह है कि निस्यान है, इब्न माजा की रिवायत है कि निस्यान है, इकरा है, और एक और है, इसमें कहीं है क्या। खता अल खता व हाँ, निस्यान। ना बाबा, अल खता व निस्यान नहीं, अल खता व निस्यान सही। इब्न माजा की हदीस है कि तीन चीजें जो है मेरी उम्मत से क्या है, माफ कर दी गई हैं। उसमें से एक क्या है, यही गलती, एक निस्यान और एक इकरा। क्या चीज, तो भूल मरफूल चूक की वजह कलम। से चीज़ें क्या हो जाती हैं, माफ है। सबसे अहम मसला कहाँ मिलता है, रोजे में, खा पी लीजिए भूल करके, माफ है। नहीं, और भी है, बात जगहों पे चूं उसका बदल वाजिब होता है या नमाज टूट जाती है। नमाज में आप भूल के गुफ्तगू कर लें, बल्कि गुनाह तो नहीं मिलेगा, अगरचे नमाज का क्या करना होगा, इआदा करना होगा, नमाज टूट जाएगी, लेकिन इस गुफ्तगू की वजह से आपको गुनाह नहीं मिलेगा, रफा इस्म है, क्या है, रफा इस्म, गुनाह नहीं मिलेगा। अल खामिस अल जहल, तखफीफ का पांचवा सबब है जहालत। हाँ, नावाकिफ होना। ये नावाकिफियत भी क्या है, उज्र है। इसकी वजह से बहुत से अहकाम साकित हो जाते हैं। एक शख्स जो है दारुल हरब में रहता है, उसे मालूम ही नहीं है मुसलमानों के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है। किसी तरह से वो किसी के जरिए से मुसलमान हो गया, किसी के जरिए क्या हो गया, वो इस्लाम कबूल कर लिया, या अपने तौर पे मुताला करके इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उसे इस्लामी अहकाम मालूम
नहीं। तो जब तक कि मालूम नहीं है तो क्या समझा जाएगा? माजूर समझा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि जितने दिनों के तुम बाद मालूम हुआ सबकी पूरी जिंदगी कदा करो तुम। नहीं, वो क्या है? माजूर है। तो एक उज्र क्या है? नावाकियत। किसके लिए? जिसके लिए वाकफियत के असबाब मुहैया ना हो। इसलिए फर्क किया गया दारुल इस्लाम का दारुल हर्ब का। यानी दारुल इस्लाम को दारुल इल्म कहा गया है। क्या कहा गया है? दारुल इल्म। यहाँ इल्म के असबाब क्या है? मुहैया है। सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं सब है, ये हिंदुस्तान भी क्या है, एक तरह से दारुल इस्लाम ही। लेकिन यहाँ भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोग कुछ नहीं जानते हैं। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ मतलब ये कि आबाई तौर नस्ली तौर पर मुसलमान हैं, कुछ चीजें करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं वो। वसयाती लहा मबाहिस, और जहालत से मुताल्लिक कुछ बहसें आएंगी। छठा सबब है अल उस्र व उमूमिल बलवा। उस्र और उमूम बलवा। इब्तिला आम है, आम लोग क्या उसमें मुब्तला हैं, बचना दुश्वार है। उस्र और उमूम बलवा कसलात मान नजासा अल माफू अनहा, जैसे कि नमाज पढ़ना उस नजासत के साथ जिसे माफ करार दिया